Bismillahirrahmanirrahim, starting with the greatest name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Let me introduce myself. I am Shazma Iftikhar Junejo, and um, I am here presenting my presentation, which was assigned to me by Sir Amjad Ali Arayan for the subject Introduction to Guidance and Counseling. I study in Faculty of Education, University of Sindh. The topic of my presentation is Steps and Procedures of Guidance and Counseling. Before proceeding towards the topic, steps and procedures, first I'll tell you that what basically counseling is. Many people will at some point in their lives find themselves in the role of counselor without having a true understanding of the concept of counseling or what the role of the professional counselor entails. There is a big difference between a professional counselor and a person who uses some counseling skills as a part of their role. For example, their role as a friend or colleague. A professional counselor is a highly trained individual who is able to use a different range of counseling approaches with their clients. Let me explain you this in Urdu. बहुत सारे लोग अपने आप को काउंसलर समझते हैं. They think that they are counselors in their lives, but the reality is that there is a difference between a professional counselor and some normal people like you, like me, who think that we can counsel other people. Counseling करने के लिए we need good skills, we need to be professional. I don't think everybody can be a counselor. Yes, they can give guide instead, but for counseling you need to be professional. So, if you want to really make a change in our client's life, if anyone's life, so we need to learn some counseling skills first. So, counseling is a process that has existed for a long time. We have soared through the ages and understand ourselves, offer counsel and develop our potential, become aware of opportunities, and in general help ourselves in ways associated with formal guidance practice. सो काउंसलिंग क्या है? काउंसलिंग एक प्रोसेस है जिसने एग्जिस्ट किया था बहुत ही लॉन्ग टाइम से, फॉर अ लॉन्गर टाइम. हमने देखा है, वी हैव सॉट, वी हैव सीन बहुत सारे सालों से और अपने आप को समझने की कोशिश करते रहे हैं. किसी न किसी पॉइंट पे लाइफ के वी नीड काउंसलिंग. कोई ना कोई ऐसा मौका आता है जब हमें काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है. In most communities, there has been, and there still is, a deeply embedded conviction that under proper conditions, people can help others with their problems. Some help others find ways of dealing with, solving, or transcending problems. बहुत सारी communities में अभी भी still there is एक conviction है, एक बात है कि कुछ कंडीशंस होती हैं जिसके थ्रू जो डिफरेंट लोग होते हैं दे हेल्प अस. सम पीपल हेल्प अस फाइंड वेज ऑफ डीलिंग इट. सम काउंसलिंग कोई लोग हमें उस चीज़ से निकलने की तरीका बताते हैं कि कैसे डील करना है, कैसे सॉल्व करना है, उस चीज़ को कैसे लेके चलना है, और हमारे प्रॉब्लम्स को वो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अगर बताता नहीं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो प्रोफेशनल अगर काउंसलर होगा तो वो समझ जाएगा, वो उस तरह से उनका ब्रेन में से निकालेगा वो चीज़ें कि इट वुड बी ईजी फॉर देम. आगे जाके हम स्टेप्स पढ़ेंगे जिसमें हमें पता लगेगा कि काउंसलर और क्लाइंट का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए और कैसे जो प्रॉब्लम्स है वो एक काउंसलर ही है जो कि किसी भी पर्सन में से उसकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करवा सकता है, उसे डील करना सिखा सकता है. In schools, if the collaboration between teachers and students is good, students learn in a practical way. अगर schools में teachers और students की collaboration means partnership, you can say, partnership, दोस्ती, अगर एक दूसरे को समझते हैं वो, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग है between a teacher and a student,
सो स्टूडेंट्स लर्न इन अ प्रैक्टिकल वे। तो स्टूडेंट्स जो है वो प्रैक्टिकल होके समझते हैं, मतलब वो अपना भी जो है प्रैक्टिकल लाइफ में से, प्रैक्टिकल यहाँ पे वर्ड आता है प्रैक्टिकल लाइफ, कि वो प्रैक्टिकल अपनी जो लाइफ है उसमें से वो ज़्यादा अच्छी तरह से समझते हैं, और उसमें जो भी उन्हें कोई प्रॉब्लम फेस करनी होगी या वो जो भी है वो कोई बात रख नहीं सकते, उन्हें लाइफ प्रैक्टिकली गुजारना वो सीख जाते हैं अगर कोलैबोरेशन अच्छी है। Young people develop degrees of freedom in their lives as they become aware of options and take advantages of them. जो यंग पीपल हैं, यूथ, जो यूथ है हमारी, वो उन्हें फ्रीडम मिल जाती है उनकी लाइफ्स में, as they become aware of options and take advantages of them. तो अगर कोलैबोरेशन अच्छी होती है, तो अगर फ्रीडम दिया जाता है बच्चों को, यंग पीपल को, यूथ को, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं अवेयर हो जाते हैं, उसके अवेयर हो जाते हैं कि उन्हें अपनी लाइफ कैसे गुजारनी है, प्रॉब्लम्स को साथ लेते लेते, और वो उसका जो ऑप्शंस आती हैं, जो उन्हें काउंसिल किया जाता है, वो उनका एडवांटेज लेते हैं। एज इट्स बेस्ट, helping should enable people to throw off chains and manage life situations effectively. सबसे बेहतर यही है कि हेल्प करना, अगर हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो वो अपनी लाइफ जो सिचुएशंस, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, उसे मैनेज करना इजीली सीख जाते हैं यंग पीपल और यूथ। इफेक्टिव काउंसलिंग स्पेशली इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ लर्निंग हैज़ नाउ बीन इम्पॉर्टेंट। इफेक्टिव काउंसलिंग जो है, इफेक्टिव यानी कि प्रॉपर अच्छी काउंसलिंग जो कि कोई इफ़ेक्ट करे, इफ़ेक्ट यानी कि कोई असर भी हो उसका, स्पेशली इन इंस्टीट्यूशन से मुराद यू कैन से स्कूल्स, कॉलेजेस, जो भी इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटीज़ ऑफ लर्निंग हैज़ बीन नाउ इम्पॉर्टेंट। आजकल काउंसलिंग स्कूल्स में बहुत ज़रूरी हो गई है, इंस्टीट्यूशंस में। बॉयज़ एंड गर्ल्स, यंग मैन एंड वुमेन नीड टू बी गाइडेड इन द रिलेशनशिप्स बिटवीन हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट। जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, यंग मैन एंड वुमेन हैं, उनको गाइडेंस ज़रूरी चाहिए होती है। गाइड क्यों किया जाए? टू बिल्ड रिलेशनशिप्स बिटवीन हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट। अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें, एनवायरनमेंट का भी, अर्निंग स्किल्स का भी, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स दैट लेड टू सक्सेस एंड फेल्यूर इन लाइफ। उन्हें गाइड करना चाहिए कि क्या चीज़ उन्हें सक्सेस के पास लेके जाती है और क्या चीज़ फेल्यूर के साथ। The need for counseling has become paramount in order to promote the well-being of the child. अच्छा, द नीड, जो काउंसलिंग की नीड है वो क्यों ज़रूरी हो गई है? क्योंकि हम जो है एक चाइल्ड की वेल बीइंग को प्रमोट कर सकें, आगे पहुंचा सकें, उसे अच्छा इंसान बना सकें। क्योंकि आजकल के हिसाब से हालात, सिचुएशंस ऐसी हैं कि I think children really need to be counseled and guided. Effective counseling should help to improve the self-image of young people and facilitate achievement in life skills. Effective counseling यानी कि जो affect करे, counseling जो अंदर असरअंदाज करे, should help to improve the self-image. Self-image यानी कि मेरी अपनी इमेज, कि मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ, मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो काउंसलिंग ऐसी करनी चाहिए कि यंग पीपल को वो फैसिलिटेट करे और वो और ज़्यादा अचीवमेंट्स हासिल करे इन डिफरेंट लाइफ टास्क। काउंसलिंग शुड एम्पावर बॉयज़ एंड गर्ल्स टू पार्टिसिपेट फुली इन एंड बेनिफिट फ्रॉम द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ नेशन। काउंसलिंग जो है वो एम्पावर करे बॉयज़ एंड गर्ल्स को, बिल्कुल। आई थिंक स्पेशली गर्ल्स को एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, सो एम्पावर करे टू पार्टिसिपेट फुल्ली, कि वो हर मैदान में, हर जंग में वो पार्ट ले सकें, एंड बेनिफिट फ्रॉम, और वो फ़ायदा भी उठा सके इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट का नेशन की। काउंसलिंग इज़ इंट्रोडक्शन। हम फिर से काउंसलिंग पे आ जाते हैं कि काउंसलिंग का इंट्रोडक्शन क्या है। द प्रोसेस दैट अकर्स व्हेन अ क्लाइंट एंड काउंसलर सेट असाइड टाइम in order to explore difficulties which may include
the stressful or emotional feelings of the client. अच्छा, जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो तब अकर होता है जब एक क्लाइंट और एक काउंसलर, इधर हम क्लाइंट वर्ड यूज़ करेंगे क्योंकि मोस्टली जो है काउंसलिंग क्लाइंट्स की होती है और गाइडेंस सबकी होती है नॉर्मली। जब वो सेट असाइड, जब वो अलग से टाइम निकाल के दोनों बैठें, बीच में कोई ना हो, टाइम निकालें एक दूसरे के लिए, जो वो हैं काउंसलर हैं वो डिफ़िकल्टीज एक्सप्लोर करें कि उनके क्लाइंट में क्या वो ऐसी बात है जो उन्हें परेशान कर रही है और क्या चीज़ है, वो इमोशनली कहाँ से हर्ट हैं, फिज़िकली कहाँ से हैं जो वो बता नहीं रहे। तो एक काउंसलर का काम होता है कि वो अंदर से निकलवाए उसकी बातें, बिकॉज द क्लाइंट विल नॉट बी इजी एट फर्स्ट, वो बिल्कुल नहीं बताएगा। सो ये काउंसलर का वर्क होता है कि वो उसकी स्ट्रेसेस और अंदर से जो भी इसकी फीलिंग्स है वो बाहर कराए। तो इसके लिए दे नीड टू सिट असाइड एंड दे नीड टू टेक अ टाइम, लाइक कोई बीच में चीज़ ना आए, कोई कॉल्स ना आए, बस वो दोनों हों और उनका टाइम हो। द एक्ट ऑफ हेल्पिंग द क्लाइंट टू सी थिंग्स मोर क्लियरली, मोर पॉसिबली फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। द इसमें जो होता है, ऑफ कोर्स काउंसलर हेल्प करता है अपने क्लाइंट की कि वो चीज़ें ज़्यादा क्लियरली देख सके, ज़्यादा पॉसिबल वेज में देख सके कि ये हो सकता है फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। दिस कैन इनेबल द क्लाइंट, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू मतलब कि क्लाइंट जो है उसके दिमाग में कोई नेगेटिव चीज़ें आ जाती हैं, वो हर किसी को शायद नेगेटिव वे से, क्योंकि उसकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो वो हर किसी को नेगेटिव वे से देखता है। तो क्लाइंट काउंसलर जो है वो उसे डिफरेंट वे में डील करना सिखाता है, और यू कैन से पॉजिटिव वे। दिस कैन इनेबल द क्लाइंट टू फोकस ऑन फीलिंग्स, experiences or behavior with a goal to facilitating positive change। तो ये जो है वो इनेबल कर सकता है क्लाइंट को कि वो अपनी फीलिंग्स पे फोकस करे, एक्सपीरियंसेस जो उसके साथ हो सकते हैं उस पर फोकस करे, बिहेवियर पे करे, और कोई गोल बनाए जो कि उसे पॉजिटिव चेंज की तरफ लेके जाए। A relationship of trust confidentially is paramount to successful counseling। जो रिलेशनशिप होता है ट्रस्ट का, जो क्लाइंट को कराना पड़ता है ट्रस्ट डेवलप, ये एक काउंसलर की होती है कि वो कैसे कराता है। तो वो जो है बिल्कुल पैरामाउंट है, यानी कि उसकी तरफ लेके जाता है कि अगर वो ट्रस्ट का रिलेशनशिप है तो वो उसे सक्सेसफुल काउंसलिंग, मतलब उसकी क्लाइंट जो कि काउंसलर है उसकी सक्सेसफुल काउंसलिंग हो गई है। Professional counselors will usually explain their policy confidentially. They may, however, be required by law to disclose information if they believe there is a risk to life। तो जो है ये जो काउंसलर्स होते हैं उनकी जो है पॉलिसीज़ होती हैं वो कॉन्फिडेंशियल होती हैं, वो हर किसी को बताने की नहीं होती। लेकिन अगर ऐसी कोई ज़रूरत पड़ जाती है सो येस दे कैन टेल। काउंसलिंग इज़ नॉट, हमने पहले पढ़ा काउंसलिंग इज़, अब हम पढ़ेंगे काउंसलिंग इज़ नॉट। काउंसलिंग इज़ नॉट गिविंग एडवाइस जजमेंटल, गिविंग एडवाइस इज़ अनदर थिंग, वो गाइडेंस में आ जाती है। ठीक है, आप एडवाइस नहीं दे सकते क्योंकि अगर आप ऐसे डायरेक्टली एडवाइस दोगे क्लाइंट को तो ही विल बी डिस्टर्ब, ही विल बी, वो परेशान हो जाएगा, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यू डोंट नीड टू गिव एडवाइसेस, यू डोंट नीड टू बी जजमेंटल, हर किसी की डिफरेंट हिस्ट्री होती है, आप किसी को जज नहीं कर सकते। अटेम्प्टिंग टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द क्लाइंट। अच्छा, आप डायरेक्टली ऐसे सॉर्ट आउट प्रॉब्लम्स नहीं कर सकते, आप हेल्प कर सकते हो। एक्सपेक्टिंग और encouraging a client to behave in a way in which the counselor may have behaved when confronted with a similar problem in their own life। आप क्लाइंट से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो आपके साथ बिहेव करे या अच्छे पॉजिटिव वे में बात करे, जैसे आप करते हो। अ क्लाइंट काउंसलर कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम अ क्लाइंट। Getting emotionally involved with the client, of course he or she is a client, or it can be a pet too, so you cannot emotionally get involved with them, you need to be practical। Looking at a client's problems, ऐसा ना हो ना इमोशनली कि कोई रो रहा है या कोई
गुस्से में है तो आप भी उसके साथ रोना शुरू कर दें, उसे सिंपैथीज देना शुरू कर दें, नो, ही विल गेट मोर हर्ट, ही विल गेट मोर इमोशनल. सो यू नीड टू बी स्ट्रांग, you need to balance looking at the client's problems for your own from your own perspective based on your own value system. You cannot see a client's problems through your own perspective. आपका perspective different हो सकता है, दूसरे का different हो सकता है. You need to be um, you need to balance it. You need to be you don't need to be like make your own perspectives और आप क्या सोचते हैं. तो you need to create balance. Okay, so now let's come towards the steps and procedures of counseling. So the steps are, step 1 is relationship building, which is the initial stage. बहुत सारी सीटिंग्स होती हैं, एक सीटिंग में वर्क नहीं होता काउंसलिंग का, तो वी नीड बहुत सारी सीटिंग्स. उसके बाद ही जाके अगर कोई प्रोफेशनल काउंसलर होगा फिर ही जाके वो डील कर पाएगा और थोड़ी बहुत चेंजेस ले पाएगा और मे बी बहुत ज़्यादा चेंज लाए क्लाइंट्स की लाइफ में. Okay, so first let's come towards steps. Step number 1 is relationship building, that is the initial stage. Step 2 is problem assessment. Step 3 is goal setting. Step 4 is counseling intervention. Step 5 evaluation termination of referral. Let's come towards step 1. Step 1, relationship building. Relationship is a term that has been used in many different situations. It could imply the ties between two people in love, the bond between family members or close friends or colleagues, or even the bond between a person and his or her pet. रिलेशनशिप एक टर्म है जो कि बहुत सारी डिफरेंट सिचुएशंस में यूज़ होती है, किसी एक में नहीं होती. ये कहाँ कहाँ इम्प्लाई होती है, कहाँ कहाँ इसका इम्प्लीमेंट होता है, ये जो है दो दो डिफरेंट और दो से ज़्यादा डिफरेंट लोगों की और इवन पेट की टाइज, जो रिलेशनशिप होता है, बंधना, जो जोड़, टाई मीन्स जोड़, उसको एक्सप्लेन, उसको डिफाइन करता है. द बॉन्ड बिटवीन फैमिली मेम्बर्स और क्लोज फ्रेंड्स, तो ये बॉन्ड जो है फैमिली मेम्बर्स में हो सकता है या फिर क्लोज फ्रेंड्स या फिर कोलीग्स आपके होते हैं. और द बॉन्ड बिटवीन अ पर्सन और हिज पेट, आपके पेट से भी हो सकता है, आपको उससे भी आपको लगा हो सकता है. सो रिलेशनशिप इज बेसिकली दैट. इन काउंसलिंग रिलेशनशिप टेक्स ऑन अ मोर स्पेसिफिक मीनिंग. काउंसलिंग में जो है रिलेशनशिप वो एक स्पेसिफिक मीनिंग देता है. द काउंसलर एस्टेब्लिशेस रैपोर्ट विद द क्लाइंट बेस्ड ऑन ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल पर्पस. इसमें कोई हम टाई की बात नहीं करते कि ऐसा रिलेशनशिप होता है. इसमें जो रिलेशनशिप होता है काउंसलिंग में वो ट्रस्ट पे बेस करता है, रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल पर्पस, यानी कि दोनों तरफ से हम आहंगी हम कह सकते हैं. When there is a good rapport, a positive psychological climate is created and vice versa. अगर एक good environment होगा तो फिर एक अच्छा psychological way में हम देखें तो climate भी create हो जाएगा. The likelihood of desirable outcomes is greater when the psychological climate is positive. जैसा कि climate positive होगा तभी चीज़ें positive की तरफ जाएंगी. Mutual purpose means both the counselor and client have common goals leading to what has been described. Mutual purpose अगर यहाँ पे बात करें तो ये कह रहे हैं कि जब काउंसलर और क्लाइंट का कॉमन यानी कि सेम, एक जैसे गोल्स होते हैं, एक जैसी डिज़ायर होती हैं कि हमें इस पॉइंट पे जाना है दोनों को साथ. Carl Rogers was among the earliest to emphasize the importance of building a relationship between the counselor and the client. Carl Rogers थे वो जो सबसे पहले, उन्होंने बहुत ही पुराने थे, उन्होंने emphasize किया था कि कैसे कि क्लाइंट और काउंसलर का रिलेशनशिप बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी है. He identified 3 important conditions for the establishment of an effective counselor-client relationship. कौन सी 3 उन्होंने points बताई? First one was empathy. According to Rogers, empathy means the therapist senses accurately the feelings and personal meanings that the client is experiencing and communicates this acceptant understanding to the client. Empathy देना यानी कि जो थेरेपिस्ट है, जो काउंसलर है,
वो फीलिंग्स और पर्सनल मीनिंग को समझ सके कि क्लाइंट चाहता क्या है, उसके अंदर क्या चल रहा है, और वो जो एक्सपीरियंस कर रहा है क्लाइंट, जो कम्युनिकेट कर रहा है या नहीं कर पा रहा। तो एक क्लाइंट का ये काउंसलर का ये होना चाहिए कि वो पता लगाए कि क्लाइंट क्या चाहता है, उसके अंदर क्या चल रहा है, what he want to do. Second one was genuineness. Genuineness refers to the counselor's state of mind. इसमें काउंसलर की स्टेट ऑफ माइंड की बात आती है. It means that you as a counselor can respond to the client as a human being and not in terms of a therapist. Genuineness means basically मैं बता दूं आपको कि आप एज बीइंग अ क्लाइंट यू डोंट नीड टू बी, यू नीड टू बी अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. अब आपको कोई क्लाइंट आता है, देखे कोई आप तो बहुत बड़ी चीज़ है, सो ही विल नेवर गोना कम्युनिकेट विद यू, ही विल नेवर गोना टेल दैट व्हाट ही इज़ फीलिंग, व्हाट आर हिज मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाट ही वांट टू डू, उसके अंदर क्या चल रहा है. आपको एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करना है, ना कि एक थेरेपिस्ट की तरह कि आप बहुत डिफरेंट डिफरेंट उसे सवाल पूछने लगे आते ही. You are comfortable with yourself and the counseling situation. पहले तो काउंसलर को अपने आप के साथ कंफर्टेबल होना चाहिए, और जो सिचुएशन उसके साथ आने वाली है उसके साथ भी कंफर्टेबल होना ज़रूरी है. The genuine counselor is one who is spontaneous, non-defensive, consistent and comfortable with the client. एक जेन्युइन काउंसलर वो ही होता है जो कि किसी की डिफेंस नहीं करता, जो कि कंसिस्टेंट होता है अपने काम के साथ, जो कि कंफर्टेबल होता है अपने क्लाइंट के साथ. वार्मथ, सी था वार्मथ. वार्मथ इज द एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड डेमोन्स्ट्रेट जेन्युइन केयरिंग एंड कंसर्न फॉर क्लाइंट्स. वार्मथ एक नाम से आपको पता चल रहा होगा कि क्लाइंट से कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए. वार्मली, बिल्कुल केयर करनी चाहिए उनकी, उनके लिए कंसर्न शो करना चाहिए, जेन्युइन. यूजिंग द एबिलिटी काउंसलर्स कन्वे देयर एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट. इसी तरह से वार्मथ देकर, जेन्युइन होके, एम्पैथी देकर हम क्लाइंट्स को अपने क्लोज ले सकते हैं, और इस तरह से वो हमें अपने अंदर की बात बता सकते हैं. Warmth can also be communicated through non-verbal behaviors such as smile, tone of voice, facial expressions. अच्छा, warmth जो है वो ज़रूर नहीं कि हम बात करके कम्युनिकेट करें, बट नॉन वर्बल में भी, जैसे कि हम स्माइल कर ली काउंसलर ने और थेरेपिस्ट ने, या फिर टोन ऑफ वॉइस जैसे थोड़ा हल्का आवाज़ कर लिया, फेशियल एक्सप्रेशंस अच्छे शो कर लिए. सम स्टेप्स फॉर रिलेशनशिप बिल्डिंग फॉर द काउंसलर. इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. पहले आप इंट्रोडक्शन कर लें, तो ये प्रोसीजर में आ जाता है कि पहले आप इंट्रोडक्शन कर लें. इन्वाइट क्लाइंट्स टू सिट डाउन. उसके बाद उन्हें बोलें कि ही और शी शुड सिट डाउन. इंश्योर क्लाइंट इज़ कम्फर्टेबल. आप ये मेक श्योर करें कि जो क्लाइंट है वो कंफर्टेबल हो. एड्रेस द क्लाइंट बाय नेम. उनका नेम लेके उन्हें मुखातिब करें. इनवाइट सोशल कन्वर्सेशन टू रिड्यूस एंजाइटी. जाते ही आप क्लाइंट से उनके अंदर की बातें ना पूछें, बल्कि सोशली आप एक बातें करें. डोंट आस्क पर्सनल क्वेश्चंस. वॉच फॉर नॉन वर्बल बिहेवियर एज साइंस ऑफ क्लाइंट्स इमोशनल स्टेट. उसके बाद आपको नोट करना है कि क्लाइंट कोई बिहेवियर नॉन वर्बल अगर शो करना है तो वो आप कैच कर लें. इनवाइट क्लाइंट टू डिस्क्राइब हिज और हर रीज़न फॉर कमिंग टू टॉक. उसके बाद जाके आप अपने क्लाइंट से पूछें कि वो यहाँ पे क्यों आया है. उससे आहिस्ता आहिस्ता आप रीज़न पूछना शुरू करें. उसे बोले कि ही शुड टॉक, ही और शी. अलाउ क्लाइंट अलाउ क्लाइंट टाइम टू रिस्पॉन्ड. क्लाइंट को हमेशा टाइम दें, उससे कोई हरी नहीं है, सो यू डोंट नीड टू हरी. इंडिकेट दैट यू आर इंटरेस्टेड इन द पर्सन. आप उसे ऐसे शो करवाएं कि आप उसमें बहुत इंटरेस्टेड हैं और आप उनकी रियली हेल्प करना चाहते हैं. तो स्टेप वन फिर से जो कि मैंने आपको समझा दिया, तो अब हम प्रोसीजर पे आ जाते हैं कि द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स बिल्डिंग रिलेशनशिप एंड फोकस ऑन एंगेजिंग क्लाइंट्स टू एक्सप्लोर इशू दैट डायरेक्टली अफेक्ट देम. द फर्स्ट इंटरव्यू इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज, अच्छा, जो फर्स्ट इंटरव्यू है जो कि इनिशियल स्टेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज द क्लाइंट इज रीडिंग द वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस एंड मेक इन्फ्रेंसेस अबाउट द काउंसलर एंड द काउंसलिंग सिचुएशन. जो क्लाइंट है वो अपने आप में एजम्पशंस बनाता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस जो कि होते हैं उनको कैच करता है. इज़ द काउंसलर एबल टू एम्पथाइज विद द क्लाइंट. अच्छा, एम्पथाइज मीन्स एम्पथी वो दे रहा है क्लाइंट को या नहीं. डज द क्लाइंट व्यू द काउंसलर एज जेन्युइन. क्लाइंट जो है वो काउंसलर को जेन्युइन समझता है, उसे बात बता रहा है या नहीं. तो इसलिए फर्स्ट स्टेप इज़ वेरी नेसेसरी. स्टेप टू,
इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन प्रॉब्लम असेसमेंट। उसके बाद काउंसलर का क्या रोल होता है? वाइल द काउंसलर एंड द क्लाइंट आर इन द प्रोसेस, जब ये प्रोसेस में होते हैं ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ रिलेशनशिप, जब वो रिलेशनशिप, जैसा कि फर्स्ट स्टेप है रिलेशनशिप बिल्ड करना, उस प्रोसेस में होते हैं, तो एक सेकंड प्रोसेस हो जाता है जिसे कि हम प्रॉब्लम असेसमेंट कहते हैं। This step involves the collection and classification of information about the client's life situation and reasons for seeking counseling। ठीक है, रिलेशनशिप आपने बिल्ड कर दिया, आपने पूछ लिया उससे सब, अपने सोशल बातें भी कर ली, उसके बाद जो कि प्रॉब्लम की असेसमेंट करनी होती है, ये होता है प्रोसेस में। ये प्रोसेस ऐसे होता है कि जो काउंसलर है वो उनसे पूछता है कि, मतलब आहिस्ता आहिस्ता करके पूछता है कि आप यहाँ पे कैसे आए, आप कौन से टॉपिक पे बात करनी है। इस तरह से वो काउंसलिंग क्यों लेना चाहते हैं, वाई दे वांट टू सीक काउंसलिंग, तो इस बात पे आ जाते हैं। Step 3, commitment to action. Goal setting. Goal setting. Setting goals is very important to the success of counseling. It involves making a commitment to set of conditions to a course, action or an outcome. उसके बाद गोल सेटिंग की आ जाती है कि जो काउंसलर हैं वो एक गोल सेट कर देते हैं अपने क्लाइंट के साथ मिलके कि उन्हें किस गोल तक जाना है। हाँ, उसके बाद स्टेप 4 इज काउंसलिंग इंटरवेंशन। देयर आर डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू कंसर्निंग व्हाट अ गुड काउंसलर शुड डू विद क्लाइंट्स डिपेंडिंग ऑन द थ्योरेटिकल पोजीशंस दैट द काउंसलर डिस्क्राइब्स टू। उसके बाद ये कह रहे हैं कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं एक गुड काउंसलर के, कि आगे जो है वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कराई जाए, किसी genuinely कि कैसे प्रॉब्लम ये आगे लेके जाएं। फॉर एग्जाम्पल द पर्सन सेंटर्ड अप्रोच suggests that the counselor gets involved rather than intervenes by placing emphasis on the relationship. The behavioral approach attempts to initiate activities that help clients alter their behavior. गोल तो सेट हो गया, उसके बाद एक प्रोसेस होता है जिसमें हमें उस गोल को आगे लेके जाना होता है। तो इस प्रोसेस में वो गोल सेटिंग को और भी क्लाइंट्स के साथ टाइम गुजारते हैं जो काउंसलर्स होते हैं, और उन्हें स्टेप बाय स्टेप आगे उनके प्रॉब्लम, उनके गोल की तरफ लेके जाते हैं। Step 5, which is the last, evaluation, termination of referral. For the beginning counselor, it is difficult to think of terminating the counseling process, as they are more concerned with beginning the counseling process. However, all counseling aims towards successful termination. अच्छा, उसके बाद terminate करना होता है वो problem, और evaluate यानी कि judgment पे एक पे आना होता है। तो काउंसलर के लिए ये थोड़ा सा प्रोसेस होता है करना, और ऑफ कोर्स सभी चाहते हैं कि ये बिल्कुल टर्मिनेट हो जाए जो भी प्रॉब्लम है। हाउ एवर ऑल काउंसलिंग एम्स टूवर्ड सक्सेसफुल टर्मिनेशन। टर्मिनेटिंग द काउंसलिंग प्रोसेस will help to be conducted with sensitivity with the client knowing it will have to end। अच्छा, तो जो क्लाइंट काउंसलर्स होते हैं मोस्टली वो कहते हैं कि काउंसलिंग इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़े ही ना, उनका प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाए क्लाइंट्स का, तो और सक्सेसफुली सॉल्व हो जाए, तो वो ज़्यादा काउंसलिंग की तरफ जाना ही नहीं चाहते। इसमें ये बोलना चाहते हैं एक्चुअली कि वो बिल्कुल सेंसिटिविटी के साथ बात करें, वो ऐसे इमोशनली बात करें कि काउंसलिंग की ज़्यादा ज़रूरत ही ना पड़े। स्टेप 5 की जजमेंट वो उसमें उन्हें करना पड़ता है। सो नोट दैट ईच ऑफ दीज स्टेप्स कंटिन्यूज इवन दो द काउंसलर एंड द क्लाइंट मूव्स टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप मूव करने से पहले फर्स्ट स्टेप होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर बिल्ट अ रिलेशनशिप द काउंसलर मूव्स टू स्टेप 2 विच इन्वॉल्व्स असेसिंग द प्रॉब्लम्स। यानी कि स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम्स चलते हैं, ऐसे ना हो कि वन स्टेप रिलेशनशिप बिल्ड किया फिर एवोल्यूशन पे आ गए। नो, every step needs to be done properly. In other words, step 1 or the building of relationship does not stop but is ongoing until step 3। जो अदर वर्ड्स में अगर एक्सप्लेन करें तो जो स्टेप 1 है वो ऐसा नहीं कि स्टेप 2 पे आ गए तो स्टेप 1 बिल्कुल एलिमिनेट हो गया। नो, एवरी स्टेप विल गो विथ वन एंड अदर। एक स्टेप होगा, फिर वो स्टेप दूसरे स्टेप में आएगा, फिर थर्ड में आएगा, फिर फोर्थ में। तो एक अच्छी काउंसलिंग के लिए ये स्टेप्स हैं कि हाउ अ काउंसलर कैन हेल्प देयर क्लाइंट्स टू
terminate the problems, to terminate all the issues, and to provide a good counseling. So, this was my presentation. I hope you liked it. Allah Hafiz.